Hello everyone, welcome back to your own channel Science Cave Fun Day. Today we are going to solve a sample paper of biology class 12th. We have discussed one sample paper in a previous video also. So let us begin with it. Instructions you know very well, but let me repeat it for you. This question paper has 3 sections. Section A, Section B and Section C. Section A has 6 questions of 2 marks. Section B has 6 questions of 3 marks. And Section C has 3 questions of... Section C has 1 question of 5 marks. No overall choices there. So I am taking the diagram questions first. Observe this diagram. Label the 3 tires and name the population growth. Okay. So this the first label is pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. Since the pre-reproductive are more, so this type of the age pyramid is expanding or the growing type. So we have done this question. Next is Ayush is very worried because his crop is destroyed by the insects. He suggests his uncle to use the BT crops. And his uncle is not satisfied because he thinks that such crop produce toxins which can harm the consumer. Now what are BT crops? Right, at what pH BT toxin is activated and how this is kill the insect. So the answer will be BT crops are generally modified plants. You can say genetically modified plants. Generally genetically modified plants which contain मैं लिख कर रह देती हूँ, बता देती हूँ, endotoxin, and the endotoxin has pores, ठीक है, from the bacteria Bacillus thuringiensis, and BT toxin is activated in the gut due to alkaline pH, and this activated toxin bind to the surface of midgut epithelial cells and create the pores that will cause the swelling and the death of the insect. Clear? So we have done these questions. Next is explain BAC and YAC. What are they and what is the purpose for which they are used? BAC is bacterial artificial chromosome and YAC is yeast artificial chromosome. These two are vectors used in the cloning DNA. For sequencing, the total DNA is taken, isolated, converted into fragments. Then the suitable host is chosen and the DNA fragments are cloned into it using the specialized vectors such as BAC, YAC, and YAP. So the fragments are sequenced by the automated DNA sequences. A thermostable enzyme from Thermus aquaticus is the perfect fit for PCR. Explain the role played by primers and high temperature in the process of PCR. सरसों देखी है आपने? सरसों है ना, सरसों, उसमें जो आप कह सकते हो जैसे टॉक्सिन हम लगा सकते हैं, ठीक है. PCR देखते हैं. मैं तो डाइवर्ट ही करती हूँ टॉपिक. PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसमें आपके पास एक थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है जो कि आता है थर्मस एक्वाटिकस से और इसका नाम क्या है? टैक पॉलीमरेज. ठीक है.
जो कि PCR में परफेक्ट फिट है, मीन्स काम करता है। अब पहले हाई टेम्परेचर का रोल देख लेते हैं। PCR में जब हम 95 डिग्री तक हीट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे कि जो स्ट्रैंड्स हैं अनवाइंड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। पहले ये ऐसे होते थे, फिर ये ऐसे हो गए। पहले ये ऐसे थे, फिर ये ऐसे 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 हो गए। ठीक है। देन प्राइमर्स का रोल क्या है? प्राइमर्स अनीलिंग के दौरान चाहिए होते हैं, जब 40 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की। नीचे आएंगे अब। वैक्सीन ने इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करी है, ओके, सेवरल डिसीजेस के लिए that can be fatal. Oh my god. How does a vaccine for specific disease immunize the body against it? Means वैक्सीनेशन जो होती है किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए होती है। किसी पर्टिकुलर डिसीज़ का ही एंटीजन हम बॉडी में डालते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स आए। तो जो वैक्सीन है एंटीबॉडीज जनरेट करती है तो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और मेमोरी बीटी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और सबसीक्वेंट एनकाउंटर्स में रिकॉग्नाइज करते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एक रोड एक्सीडेंट में विक्टिम है जो कि हैवीली ब्लीडिंग कर रहा है, उसको नर्सिंग होम लाया गया, तो डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन दिया उसको डेडली डिसीज़ से बचाने के लिए। ओके, डॉक्टर ने क्या इंजेक्ट किया, कौन सा डिसीज़ था, कौन सी इम्यूनिटी मिली? टेटनस हो सकता है, यही लगता होता है वैसे एक्सीडेंट्स के केसेस में। तो टेटनस है तो बैक्टीरिया कौन कॉज करेगा? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और ये सिंस ये इंजेक्शन है तो पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज़ हो रहा है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। गवर्नमेंट ने एडवाइस किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाओ, ठीक है, और बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ किया जाए। ठीक है, अब हमें यूज़ बताना है बायो कंट्रोल एजेंट्स का एग्रीकल्चर में और एक्सप्लेन करना है जैसे क्यों और कैसे बैकुलोवायरसेस बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए बायो कंट्रोल एजेंट्स एग्रीकल्चर में जब काम करते हैं मतलब क्या करते हैं, वो हम जो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स डालते हैं उनकी अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं और मिनरल्स की जो एफिशिएंसी है जो यूज़ करने के हम डालते हैं मिनरल्स उसको यूज़ करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। टारगेट स्पेसिफिक होने से क्या होता है, ये अपने साइड वाले लोगों को मतलब नेबरिंग फ्लोरा फोना को अफेक्ट नहीं करते। जैसे कि हमारा बदला किसी से होता है, हम किसी से लग जाते हैं किसी के थ्रू, तो ये नहीं, ये अपना बदला डायरेक्ट लेता है, अपना काम डायरेक्ट करता है, साइड वालों को कुछ नहीं कहता। और जो बैकुलोवायरसेस की बात हो रही है, बैकुलोवायरसेस पैथोजेंस होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशंस में इसका बड़ा वाला यूज है, यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एज फेस्ड बाय यंगस्टर्स नाउअडेज। सो अल्कोहल अब्यूज़ है जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लेकर आता है इंडिविजुअल पे, नहीं इंडिविजुअल की फैमिली पे भी। क्योंकि एक इंडिविजुअल क्या अफेक्ट्स करता है फॉलो पहले हम देखते हैं। यंगस्टर क्या होगा, नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाएगा, बिहेवियर थोड़ा हो जाएगा, डिप्रेशन, वेट लॉस। ठीक है, ज़्यादा एक्सेस में अल्कोहल पिएगा तो लिवर का कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकती है, पेप्टिक अल्सर्स और गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है। क्योंकि यंगस्टर अगर तो बच्चा है तो वो स्टूडेंट है तो वो स्टडी कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन इज बायोटेक्नोलॉजी बून है एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्योंकि इसने क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की है और एबायोटिक बायोटिफिकेशंस प्रोवाइड करवाई है। इसकी एप्लीकेशन है प्रिवेंट करने में टोबैको रूट्स को निमाटोड इन्फेक्शन से। एक्सप्लेन करो कैसे ये RNA जीन के साथ पंगे लेता है, मीन्स हाउ इट कंज्यूम द सेल विद RNA। तो जब मेलोडिग्नी इनकोग्निशिया है जो सेल्स कंज्यूम करता है RNA के जीन के, तो पैरासाइट जी नहीं पाता, मर जाता है। ठीक है, खड़ा नहीं हो पाता, लेट जाता है। ठीक है,
जैसे ही डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं तो सेंस और एंटी सेंस आरएनए जनरेट होता है, ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंड करता है और नीमाटोड के एमआरएनए की ट्रांसलेशन नहीं होने देता। ट्रांसलेशन नहीं होगी तो नीमाटोड का जो एमआरएनए है वो चुप हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, काम नहीं करेगा। अगर उसका खुद का काम एमआरएनए काम नहीं करेगा तो पैरासाइट वहाँ नहीं जी पाएगा, मतलब मेलोडिग्निया इंकोग्निटिया मर जाएगा। तो बाको प्लांट तो बच गया ना हमारा, हमें तो बचने से मतलब है। 10th क्वेश्चन, हीट लॉस और हीट गेन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी की। एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे कि हमिंग बर्ड, श्रीयूज या फिर आप कह सकते हो श्रीयूज कह रहे हो, छोटे छोटे होते हैं ये, इनका जो वॉल्यूम से ज़्यादा तो एरिया होता है, तो ये हीट को कोल्ड में बड़ी जल्दी कोल्ड कंडीशंस में हीट को बड़ी जल्दी लूज़ कर देते हैं। अब क्योंकि इनका एरिया ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, तो इसलिए स्मॉलर एनिमल्स कम पाए जाते हैं पोलर रीजन में, बिकॉज उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो कि उनको खुद लगानी पड़ती है, क्योंकि उनको बॉडी हीट या बॉडी हीट को लूज़ या गेन करना होता है। सेकेंड इज हाइबरनेशन और से जूम प्लैंकटन और डायापॉज, इसमें फ़र्क बताना है डायापॉज और हाइबरनेशन में। तो डायापॉज होता है कि लाइफ को हमने रोक लिया, स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, हमने लाइफ रोक दी अपनी। वेयर एज हाइबरनेशन है कि हम कुछ टाइम के लिए इनएक्टिवेट हो जाए। डायापोज डोमेन स्टेट है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट भी रुक जाती है। हाइबरनेशन में इनएक्टिवेट हो जाता है ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम के लिए। डायापोज, डाया मीन्स 2, तो 2 टाइम्स पॉज लगना है, मतलब समर और विंटर में। वेयर एज हाइबरनेशन में सिर्फ विंटर में पॉज लगने वाला है। डायापोज आपके जू प्लैंक्टन्स करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आकर, और हाइबरनेशन आपके बियर्स करते हैं विंटर्स में। थर्ड इज अखिल को स्टमक दर्द हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, जी भी घबरा आ रहा है उसका, नोजिया उसको, और उसको भूख भी नहीं लग रही। वाओ, उसे डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने कहा उस स्टूल टेस्ट करवाओ। स्टूल टेस्ट के बाद पता लगा, डॉक्टर ने कहा तुम्हें राउंड वॉर्म पैरासाइट की इन्फेक्शन है। वो एक्टोपैरासाइट है कि एंडोपैरासाइट है? एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर मिल रहा है यार। फिर उसने ब्रूड पैरासिटम पूछा। ब्रूड पैरासिटिज्म होती है जब पैरासाइट अपने अंडे अपने ही होस्ट के रख दे, जैसे कुक्कू ने कौवे के उसके नेस्ट में रख दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट ये फर्मेंटर का डायग्राम है, इसमें कौन कौन से माइक्रोब यूज होते हैं पहले बताओ। कहते ईस्ट यूज होती है वाइन विस्की ब्रांडी बनाने के लिए, रम बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसने पूछा ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताओ, कौन सा बैक्टीरिया या फंगी प्रोड्यूस करती है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस निगर, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी, ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलम, और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया है, और जो एस्परजिलस निगर है सिट्रिक एसिड वाली वो फंगी है। अब ये देख लो कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या इसका टेक्निक है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को साइज पे डिपेंड साइज़ के अकॉर्डिंग उसको अलग कर देना, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो जो डीएनए के स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो एनोड की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव की चार्ज तरफ, ठीक है, और हैवी रह जाएगा। तो एग्रोस जेल के ऊपर मीडियम के ऊपर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। स्टेटमेंट जस्टिफाई कीजिए, जितनी छोटी फ्रैगमेंट उतनी दूर जाएगी, काहे? क्योंकि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लाइटेस्ट वेट की, मतलब छोटी सी फ्रैगमेंट होगी जिसका लाइट वेट होगा वो दूर चली जाएगी, पर जो हैवी है वो कम चलेगी, ठीक है। जैसे मोटे लोग थक जाते हैं चलते चलते और रुक जाते हैं, पतले वाले चलते रहते हैं कई बार। सेकंड पूछता है इसकी एप्लीकेशन बताइए। ये आपकी फिंगरप्रिंटिंग में होती है, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, और ठीक है, इनका साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल डिसाइड करने के लिए इसको वरता जाता है, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है? इन सिटू कंजर्वेशन होती है जब हम होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें और कंजर्व करें, ठीक है। इसकी अप्रोच क्या होती है? अगर मेरे को टाइगर बचाना है तो मैं टाइगर को पूरा जंगल बचा लूँ, ठीक है। अकेला टाइगर नहीं, एक जंगल भी बताया जाए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं?
ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस होती है, हाई डिग्री एंडेमिज्म की होती है। टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं हमारे वर्ल्ड में? 34। सेकंड ग्रुप की एग्जांपल अरावली हिल्स है राजस्थान की, और चंदा बस्त्रा हिल्स है मध्य प्रदेश की। मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं? सो हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, एनालाइज करो। फर्स्ट डायग्राम देखेंगे, सबसे नीचे प्रीरोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव थोड़े कम है, ऊपर और कम है, बूढ़े कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा आगे ग्रोथ होगी, तो ये पॉपुलेशन आपकी एक्सपेंडिंग। सेकंड वाले में देखो सब कुछ बराबर है, तो स्टेबल पॉपुलेशन। थर्ड वाले में बूढ़े ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो डिक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, तो ये है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सेकंड कहता है फिटनेस बताओ, जो डार्विन ने बताई थी। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है। डार्विन कहता है कि जो ज़्यादा ब्रीड करता है वो ही उतना फिट है। जैसे वो होते हैं आपके मैमल्स, वो लाइफ में एक से ज़्यादा बार ब्रीड करते हैं, ठीक है। और बैम्बू है जो एक टाइम ब्रीड करता है लाइफ में, तो रिप्रोडक्टिव सेंचुरी अपनी अपनी होती है और वो ही आपको एक सिलेक्शन अलग करवाती है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मर कहता है कि बायोडाइवर्सिटी हेल्थ है, फर्दर करती है हेल्थ को, बिकॉज अब ऑर्गेनिक फार्मर को पता है कि हम केमिकल से बिल्कुल इरेडिकेट नहीं हो सकते, ऑर्गेनिज्म से इरेडिकेट नहीं कर सकते ऑर्गेनिजम्स को, तो उसने क्या किया, उन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना शुरू कर दिया किसी न किसी वे से, कि हम उन प्रेडेटर्स का बेनिफिट ले लें। सेकंड आता है पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसको मलेरिया हुआ है, मलेरिया का साइकिल ये है, आप बताओ घुसा कैसे वो, और कॉज कि फीवर क्यों हो रहा है, तो इसका कॉजिबल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी में एज अ स्पोरोजोइट एंटर करता है जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है, ठीक है। और रेगुलर इंटरवल्स पे वहाँ पे जब आरबीसी बर्स्ट करता है तो हीमोजोइन पिगमेंट रिलीज होता है, जो कि इंटीमेट फीवर मीन साइकिल्स ऑफ फीवर को करवाता है। नेक्स्ट इज टबैको स्मोक से ब्लड प्रेशर और एम्फीसीमा की बीमारी होती है, क्योंकि टबैको में निकोटीन होता है जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज करवाता है। दोनों हार्मोन्स आपका बीपी और हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, और स्मोकिंग करने से आपका लंग कैंसर का चांस बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट बढ़ जाता है बॉडी का, जो कि ऑक्सीजन अब कम हो चुका है, आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ चुकी है, तो हीम और ऑक्सीजन की जो वो है बॉन्ड है वो टूट जाती है, मतलब कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने के कारण आपको तोड़ पड़ती है, मीन्स क्रेविंग्स होती हैं हार्ड ड्रग्स की, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सैम्पल पेपर, वी हैव completed the sample paper, so we will meet in the next video with a new sample paper. Thank you and have a nice day. And if you like the video, if it was helpful for you, hit the like button, share and subscribe.